ओके चलो। अब ठीक है। ओके चल, आवाज येतोय माझा? सांगा एकदा, आवाज येतोय का? ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब ठीक है। सो वी आर डीलिंग विद टॉपिक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और उसमें हम बात करें किंगडम फंगाई के बारे में। इन लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किंगडम फंगाई, then we discussed about the mode of nutrition in kingdom fungi. All the fungi are दोस्तों heterotropic, means they are dependent on other organism for their food supply. And उनमें कौन सा mode of reproduction, कौन सा mode of nutrition है? That is a absorptive mode of nutrition. Means during nutrition they releases the enzyme outside their body and on a organic substances, on a complex organic substances, and these enzyme causes the breakdown of these complex organic substances into the simple absorbable form and absorb these substances, okay, within their body, and this is called as दोस्तों external digestion. So with respect to nutrition in fungi, please remember three keyword, and वो है heterotropic mode of nutrition, number 1, number 2 absorptive mode of nutrition, or number 3 that is external digestion. और फिर कुछ most of the fungi are saprophytic, means they obtain their nutrition from decaying organic matter or from dead plant and animal. Some of the fungi are parasitic, means they derive their nutrition from the living host. Example of parasitic fungi are, that is albigo is the parasitic fungi on mustard, MCQ. Mustard means mori, okay, sarso. And again the Puccinia and Ustilago, these are also parasitic fungi. Puccinia is named as a rust fungi and Ustilago is named as a smut fungi. फिर हमने देखा दोस्तों symbiotic association. Now symbiotic, there are two conditions, one is the mycorrhiza, another is the lichens. Mycorrhiza, myco means mycology, means study of fungi, and rhiza, the term is related with the roots. So mycorrhiza is the symbiotic association between the fungi and roots of higher plant like gymnosperm and angiosperm, particularly gymnosperm. Now ये जो fungi क्या करते हैं, okay, they reside in a roots of higher plant and provide the nutrition to them, means provide the minerals to that plant, and also help in absorption of water from the soil. They absorb water and minerals from the soil and supply that water and minerals to the plant. They also increase the surface area of absorption, and in turn they get the nutrition from plant. They also get the shelter from the plant. Now what is meant by lichens, and the most common genus that is in the mycorrhiza is the Glomus. Glomus is the genus of fungi that are associated with the mycorrhiza. Lichens क्या है? Lichens is the symbiotic association between algae and fungi. Algae एटोट्रॉपिक होती है, प्रोड्यूसर है, फोटोसिंथेटिक है, और फंगा है दोस्तों वो हेटेरोट्रॉपिक है, कंज्यूमर है और नॉन फोटोसिंथेटिक है. तो algae क्या करेगी? Algae means provide nutrition to fungi, and in turn fungi provide shelter to the algae, and fungi also help in absorption of water from soil.
जो अलगल कंपोनेंट है उसको कहा जाता है फाइकोबियॉन्ट, और जो फंगल कंपोनेंट है उसे कहा जाता है माइकोबियॉन्ट। फाइकोलॉजी मीन स्टडी ऑफ अलगी, फाइकोलॉजी मीन स्टडी ऑफ अलगी, याद रखो। लाइकेंस में क्या है? फाइकोलॉजी, मैंने पहले भी लिख के दिया है, फाइकोलॉजी मीन्स दोस्तों स्टडी ऑफ अलगी, और दूसरा है माइकोलॉजी मीन स्टडी ऑफ फंगाई। ये दो ब्रांचेस है बायोलॉजी की। फाइको, द टर्म फाइको इज रिलेटेड टू द अलगी, स्टडी ऑफ अलगी, स्टडी ऑफ अलगी, एंड माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंगाई, इज द स्टडी ऑफ फंगाई। तो जो अलगल कंपोनेंट है उसे कहा जाता है फाइकोबियॉन्ट, और जो फंगल कंपोनेंट है उसे कहा जाता है माइकोबियॉन्ट, और लाइकेंस को कहा जाता है दोस्तों सिम्बायोंट। Lichens are very good indicator of air pollution because they do not grow in polluted air. Why? Because they are very sensitive to sulfur dioxide, or in presence of sulfur dioxide they die. So they never found in industrial area. जो industrial area जैसे औरंगाबाद, यहाँ पे आजू बाजू में इंडस्ट्रियल है तो आपको लाइकेंस नहीं दिखेंगे। दे आर मोस्टली फाउंड इन रूरल एरियाज, वहां पे जहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है। तो ये हमने देखा था दोस्तों लाइकेंस के बारे में। लाइकेंस के अलग अलग टाइप है, तो जब आगे भी लाइकेंस है वायरस में तो तब बात करेंगे। सो ये याद रखो। और मैंने कहा था दैट इज, ये लाइकेंस क्या है? लाइकेंस क्या है दोस्तों? लाइकेंस आर, इट इज नथिंग बट सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन अलगी प्लस फंगाई, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन अलगी एंड फंगाई। तो ये लाइकेंस को कहा जाता है सिम्बायोंट, इसे बोला जाता है सिम्बायोंट, और अलगी को बोला जाता है फाइकोबायोंट, फाइकोबायोंट, प्लस फंगाई को बोला जाता है माइकोबायोंट। ये क्वेश्चन आके गया है, फिर आने के चांसेस, ये याद रखो। नाउ मोस्ट कॉमन अलगी जो है वो है दोस्तों ब्लू ग्रीन अलगी, दैट इज साइनोबैक्टीरिया, और फिर बाद में आती है ग्रीन अलगी। और मोस्ट कॉमन फंगाई इज द एस्कोमाइसिटिस। बात करेंगे क्या होता है एस्कोमाइसिटिस के बारे में, ठीक है? इज दैट क्लियर? ये क्लियर है? ये क्लियर है या नहीं? वेदांश, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा। ओके, ले लिया? ओके, डन। आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज स्लाइड नंबर 1। एक बार फिर ले लो बेटा, दिस इज एन स्लाइड नंबर 1। ये है स्लाइड नंबर 1। चलो आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे दैट इज रिप्रोडक्शन इन फंगाई। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और लास्ट क्राइटेरिया एक्चुअली फंगल का जनरल कैरेक्टरिस्टिक का, दैट इज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंगाई। कौन से मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है और टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंगाई। मोड मींस टाइप, रिप्रोडक्शन इन फंगाई, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंगाई। बात करें फंगाई, याद रखो। नाउ fungi have all three type of reproduction: vegetative reproduction, asexual reproduction and sexual reproduction। vegetative, asexual and sexual। पहले ही लाइन लिखता हूं यहां पे, fungi have all three type of reproduction। fungi में तीनों टाइप की रिप्रोडक्शन है। they have all three types of reproductions। और वो कौन से टाइप है? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंगाई दोस्तों? दैट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, देन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और फिर दोस्तों दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जो है नंबर 1 दैट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, it occur with the vegetative part, it occur with दोस्तों vegetative part। फिर है दोस्तों that is asexual reproduction in fungi। asexual reproduction बेसिकली याद रखो, कभी भी दोस्तों दो ही टाइप के रिप्रोडक्शन है हर एक ऑर्गेनिज्म में, एक है asexual, दूसरा है सेक्सुअल। ये वेजिटेटिव जो है इट इज अ सब टाइप ऑफ asexual रिप्रोडक्शन। तीसरा है दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक फीचर होता है दैट इज फर्टिलाइजेशन। ये दोस्तों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ दिस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसके 3 टाइप होते हैं। इसमें 3 टाइप है, दैट इज फ्रैगमेंटेशन,
एंड बडिंग। ये हम डिटेल में जानेंगे कि क्या होता है फ्रैगमेंटेशन का मतलब क्या है, व्हाट इज मीन बाय फ्रैगमेंटेशन, व्हाट इज मीन बाय फिशन, फिशन का मतलब क्या है ये भी जानेंगे, और दोस्तों साथ में जानेंगे व्हाट इज मीन बाय बडिंग। These are the three type of vegetative reproduction which occur with the vegetative part of fungi. Now ये जो asexual reproduction है दोस्तों, it occur by the asexual spore. Okay, it occurs okay with the help of दोस्तों with the help of asexual spore. उन्हें माइटोस्पोर भी कहा जाता है, asexual spore की मदद से होते हैं। Like, और कौन से एसेक्सुअल स्पोर है दोस्तों, एसेक्सुअल स्पोर के एग्जांपल है लाइक दैट इज जूस्पोर, ये एमसीक्यू आएगा, जूस्पोर आर द असेक्सुअल स्पोर, जूस्पोर, देन अप्लानोस्पोर, ओके, देन दोस्तों दैट इज अ कोनिडिया, और फिर होते हैं स्पोरेंजियोस्पोर। ये चार टाइप है, जूस्पोर, देन अप्लानोस्पोर, इसके डिटेल में जाएंगे हम जब इनका स्ट्रक्चर आएगा। जूस और जू मीन्स ये मोटाइल होते हैं, जू मीन्स एनिमल, अप्लानो, प्लानो मीन्स दोस्तों मोटाइल, अप्लानो मीन्स फिक्स्ड, जूस्पोर, अप्लानोस्पोर, कोनिडिया नाम के भी स्पोर है, कोनिडिया। फिर दोस्तों दैट इज ए भी है, ए मीन्स असेक्सुअल स्पोर, ये सब क्या है असेक्सुअल स्पोर है, और एक है दोस्तों दैट इज अ स्पोरेंजियोस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर। पहले टेबल लिखता हूं और ये टेबल मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूं। सो दीज आर द असेक्सुअल स्पोर इन फंगाई, ये क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द असेक्सुअल स्पोर्स इन फंगाई, व्हाट आर द असेक्सुअल स्पोर इन फंगाई, कैसे याद रखेंगे दोस्तों, तो ये बहुत ही इजी है याद रखने के लिए। यहां से जूस्पोर से लेते हैं दोस्तों झड़, ए से लेते हैं अप्लानोस्पोर से लेते हैं ए, सी से लेते हैं कोनिडिया से लेते हैं सी, और ये सब क्या है असेक्सुअल स्पोर, फिर ए, और यस से फिर दोस्तों दैट इज अ स्पोरेंजियोस्पोर से यस, तो क्या हो गए झकास, झकास। पर झकास की स्पेलिंग यहाँ पे क नहीं है, के नहीं है, यहाँ पे है सी, तो याद रखो झकास इज एग्जांपल ऑफ दोस्तों असेक्सुअल स्पोर। Z फॉर जूस्पोर, A for अप्लानोस्पोर, C for कोनिडिया, A for these are asexual spore, और S for sporangiospoor। MCQ झकास, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट ऑकर बाय फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट, ये कैसे होता है दोस्तों, इट ऑकर्स बाय दैट इज फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट, बाय formation and fusion of gametes, formation and fusion of gametes, that is a sexual reproduction। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट मींस फर्टिलाइजेशन, और कुछ असेक्सुअल स्पोर भी होते हैं दोस्तों, असेक्सुअल स्पोर इन फंगाई, और इसमें कुछ सेक्सुअल स्पोर भी बनते हैं, असेक्सुअल तो हो गया, दैट इज सेक्सुअल स्पोर भी बनते हैं इस रिप्रोडक्शन में आल्सो, उन्हें म्यूस्पोर कहा जाता है, मैं डिटेल में जाने वाला हूं। तो सेक्सुअल स्पोर इन फंगाई कौन से है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो वो है दैट इज अ एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर एंड oospore। कौन से व्हाट आर द सेक्सुअल स्पोर, नंबर है दोस्तों दैट इज एस्कोस्पोर इन एस्कोमाइसिटीज, ascospore in ascomycetes, then basidiospore in basidiomycetes, और फिर होते दोस्तों oospore, फिर क्या होते हैं oospore। So these are ascospore, basidiospore and oospore, these are the दोस्तों sexual spore, कहते हैं म्यूस्पोर। कैसे याद रखेंगे दोस्तों, आपने ब्लड ग्रुप, हमारा ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या है पता है आपको, हमारे 4 ही ब्लड ग्रुप है, आइदर ए, बी, ए बी एंड ओ। तो ये जो 4 ब्लड ग्रुप होते हैं ह्यूमन में, फिर बाद में उसमें डिवीजन है, ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, और वो जो दूसरा फैक्टर है दोस्तों RH एंटीजन है या नहीं उसके ऊपर होता है, अगर RH एंटीजन है तो पॉजिटिव, नहीं है तो निगेटिव। तो हमारे सिलेबस में ब्लड ग्रुप है, टॉपिक है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, ह्यूमन फिजियोलॉजी में डिटेल में देखेंगे। तो ये ब्लड ग्रुप सिस्टम है दैट इज डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टीनर, लैंडस्टीनर नाम के एक साइंटिस्ट है दोस्तों, उन्होंने कार्ल लैंडस्टीनर, उन्होंने डिस्कवर किया है एबीओ ब्लड ग्रुप,
तो हमारे बॉडी के अंदर क्या है, एबीओ ब्लड ग्रुप है। ये है टॉपिक ह्यूमन फिजियोलॉजी का, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो ये जो एबीओ ब्लड ग्रुप जब आप पढ़ोगे वहां पे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में, तो आपको ये एबीओ से याद ये रखना है कि यार एबीओ मैंने कहीं तो भी सर ने निमोनिक्स दिया है एबीओ का। एबीओ मींस दोस्तों, ए फॉर एस्कोस्पोर, बी फॉर बेसिडियोस्पोर और ओ फॉर oospore। और ये जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है, दैट एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाय कार्ल लैंडस्टीनर। इट इज डिस्क्राइब्ड बाय दोस्तों लैंडस्टीनर। याद रखो, ऐसे याद रखेंगे, दैट इज एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है हमारे बॉडी के अंदर। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है हमारे बॉडी में। एंड दैट एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इज गिवन बाय दोस्तों लैंडस्टीनर, साइंटिस्ट का नाम, ये भी एमसीक्यू है, लैंडस्टीनर। ओके, लैंडस्टीनर, ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का एमसीक्यू है, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। जब वहां पे एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ेंगे तो यहां उसे कनेक्ट करेंगे, डायरेक्ट आ जाएंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। अरे एबीओ और एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर और oospore, these are the sexual spore in fungi। और जब यहाँ पे ये एबीओ पढ़ेंगे, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, oospore, तो डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में, दैट इज टॉपिक बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। अरे एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इज गिवन बाय कार्ल या फिर लैंडस्टीनर, उसका नाम है लैंडस्टीनर, याद रखो। सो दिस इज एन स्लाइड नंबर 2 दोस्तों। सो ये क्वेश्चन आएगा, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, फंगाई हैव ऑल 3 टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। दोस्तों करेक्ट स्टेटमेंट, दैट इज फंगाई हैव all 3 type of reproduction, that is number 1 vegetative reproduction. Vegetative reproduction means it occur with the help of vegetative part. They have asexual reproduction which occur with the help of asexual pore, or they also have दोस्तों sexual mode of reproduction which occur with the help of formation and fusion of gamete. Now whatever the type of vegetative reproduction, FFB याद रखो, okay, FFB, okay, ये ऐसा FFB, fragmentation, fission and budding। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में याद रखो दोस्तों, झकास, ज़ूस्पोर, अप्लानोस्पोर, कॉन्डिडोस्पोर एंड स्पोरेंजियोस्पोर। और सेक्सुअल स्पोर बाय फ्यूजन, फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट, और वो है 3 एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, oospore। स्क्रीनशॉट, ओके, डन, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। ओके, कैसे याद रखेंगे, इसको याद रख सकते हो दोस्तों, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर, बहुत ही बढ़िया, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर। बर्डिंग, फिशन एंड फ्रैगमेंटेशन, बर्डिंग, फिशन एंड फ्रैगमेंटेशन, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, दैट इज बेस्ट फॉर बर्डिंग, फिशन, बर्डिंग, फिशन एंड या फॉर फ्रैगमेंटेशन। अभी ले लो वेदांश, ये स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ओके, ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो, याद रहे आपको, ओके, BFF, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ओके, डन, थैंक यू। चलो आगे बढ़ते हैं। किसी ने तो भी क्वेश्चन पूछना है तो आप आपका क्वेश्चन जो है थोड़ा सा, ओके, रखो, आगे बढ़ते हैं। मैं स्टार्ट विद वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ आएगी, ओके, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ फंगा देखेंगे। ये इस फॉर्म में इंफॉर्मेशन जाना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस फॉर्म में, स्ट्रक्चरल फॉर्म में इंफॉर्मेशन जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही है कि अगर ये इतना इजीली टेबल के फॉर्म में हमें याद इजीली रहता है, इसलिए मैं टेबल बनाता हूं। अभी ये टेबल हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे 1 बाय 1। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि ऑल 3 टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन आर प्रेजेंट इन फंगाई, ओके। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे एमसीक्यू भेज रहे हैं और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, वो सोच रहे हैं, ओके, यही शुरुआत है। नाउ बात करते दोस्तों स्लाइड नंबर 3 के साथ शुरू करता हूं। व्हाट इज मीन बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? पहले तो क्या होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, मतलब क्या है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? ये प्लांट में कॉमन है दोस्तों, इट इज वेरी कॉमन इन प्लांट। नाउ प्लांट में ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, this type of reproduction occur with the vegetative part of plant like stem, root और leaf। फंगाई में भी कुछ वेजिटेटिव पार्ट होते हैं, उससे होता है। सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दोस्तों
it occurs with the help of वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ फंगाई. इट ऑकर विद द हेल्प ऑफ दोस्तों जो वेजिटेटिव पार्ट है, हाइफे एंड ऑल दैट, वेजिटेटिव पार्ट्स like for example hyphae. It occur with the help of vegetative part or hyphae of fungi. तो इसे कहते हैं दोस्तों दैट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन विद हाइफे. फॉर एग्जांपल लाइक हाइफे या फिर दूसरा भी कुछ सेल एंड ऑल दैट. तो इसमें 3 टाइप है दोस्तों. इसमें नंबर 1 है दैट इज, इसके 3 टाइप है दैट इज नंबर 1 है फ्रैगमेंटेशन. नाउ होता क्या है, मैं पहले डायग्रामेटिकली समझाता हूं फ्रैगमेंटेशन में, फिर आपको क्या होता है. सो फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है दोस्तों, दैट बॉडी ऑफ फंगाई अंडरगो breakdown into multiple pieces known as a fragment and each fragment grow as a individual fungi. मान लो कि दोस्तों ये फ्रैगमेंटेशन क्या है कि सपोज ये है फ्रैगमेंटेशन, सपोज दिस इज एन बॉडी ऑफ फंगाई. ओके, ये फंगा है दोस्तों. सपोज मान लो ये है फंगा. ओके, ये है फंगा, ये है इंडिविजुअल फंगा, ये है इंडिविजुअल फंगा. तो क्या होगा, बिकॉज सम मैकेनिकल इंजुरी, कोई तो भी प्रॉब्लम आ गया और बिकॉज ऑफ दैट मैकेनिकल इंजुरी ये वाला पार्ट अलग हो गया. सपोज मान लो ये वाला पार्ट अलग हो गया. ओके, और मान लो कि ये वाला पार्ट अलग हो गया, ये टूट गए हैं. ओके, तो ये जो 3 पार्ट है, दिस वन एंड दिस वन, ये अलग हुए हैं. तो ये कहा जाता है दोस्तों, दीज आर द फ्रैगमेंट्स. तो ये इस फ्रैगमेंट से, ओके सॉरी, नो ये जो फ्रैगमेंट्स है दोस्तों, इस फ्रैगमेंट से ग्रो होके इससे एक नया इंडिविजुअल फंगाई बनने के चांसेस, इससे नया इंडिविजुअल फंगाई बनेगा. फिर दोस्तों ये जो है इससे भी नया इंडिविजुअल फंगाई बनेगा और ये जो है इससे भी नया इंडिविजुअल फंगाई बनता है. सो दे केप द कैपेबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू फंगाई. उनमें ना नया फंगाई बनने की कैपेसिटी है, हर एक में, हर एक फ्रैगमेंट से नया फंगाई बनने की कैपेसिटी है दोस्तों. इसे कहते हैं दैट इज अ फ्रैगमेंटेशन. ये कौन सा टाइप है, इसे कहते हैं दोस्तों फ्रैगमेंटेशन. फ्रैगमेंट से नया इंडिविजुअल बनना. सो दोस्तों फ्रैगमेंटेशन मींस इट इज द, in fragmentation the body of fungi are broken down into multiple pieces because of mechanical injury. Okay, and these multiple pieces known as a fragment and each fragment grow as an individual fungi. What is meant by fragmentation, जरा यहां से लिखता हूं, समझ में आया डायग्रामेटिकली. ये हाइपोथेटिकल डायग्राम है. बात करते हैं फ्रैगमेंटेशन. ये आपको था 10th में, ये आपको था दोस्तों. ये दूसरे कुछ एनिमल में भी है ये फ्रैगमेंटेशन, कुछ अलगी में भी है दोस्तों, याद रखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज आल्सो प्रेजेंट इन सम फिलामेंटस अलगी, इट इज आल्सो प्रेजेंट इन सम लोअर एनिमल लाइक हाइड्रा और पोरीफेरा. ये मैं नोट लिखूंगा नीचे, आप नोट याद कर दो मुझे. फ्रैगमेंटेशन दोस्तों, ओके, इन विच क्या होगा, डिटेल में लिखेंगे. इन विच बॉडी ऑफ, इन विच ड्यू टू मैकेनिकल इंजुरी और अदर कॉज, ड्यू टू मैकेनिकल इंजुरी मीन्स कोई तो भी यहां पे आके हिट हुआ है, ड्यू टू मैकेनिकल इंजुरी और अदर कॉज, उसकी वजह से दोस्तों बॉडी ऑफ फंगाई broken down into small pieces k oblique known as fragments. So दोस्तों what are these, ये क्या है, what are these, ये क्या है, these are the fragments. Each fragments grow as a individual fungi. Each fragment okay grow as new individual fungi. MCQ. और इसे कहते हैं दोस्तों फ्रैगमेंटेशन. This is an fragmentation. This is the first type of vegetative reproduction. Are you getting me or not?
और दोस्तों व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज नोट, ये सिर्फ फंगाई में नहीं है, ये सिर्फ फंगाई में नहीं है, फ्रैगमेंटेशन इज आल्सो प्रेजेंट इन algae and some lower animal like poriferans और दोस्तों हाइड्रा सिलेंट्रेट। याद रखो दैट इज, ये क्वेश्चन आता है, इट इज आल्सो प्रेजेंट इन मींस फ्रैगमेंटेशन इज आल्सो प्रेजेंट इन, टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म 12th साइंस का ये लाइन, इट इज आल्सो प्रेजेंट इन दोस्तों दैट इज सम फिलामेंटस algae, सम फिलामेंटस algae, कुछ algae में भी है, some filamentous, filamentous means thread like दोहरा सारखी, and दोस्तों some filamentous algae and lower animal like दोस्तों that is sponge means poriferans and hydra। हाइड्रा में बडिंग भी है और फ्रैगमेंटेशन भी है, ये बहुत बढ़िया एमसीक्यू लिख रहा हूं यहाँ पे। हाइड्रा में दोस्तों बडिंग भी होता है जैसे फंगाई में है, और फ्रैगमेंटेशन भी होता है, ये बहुत एमसीक्यू है, आपको यही मिल रहा है। सो इट इज आल्सो प्रेजेंट इन सम फिलामेंटस algae एंड लोअर एनिमल लाइक स्पंजेस एंड हाइड्रा। ये जो नोट में लिख, नोट सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, इस स्लाइड की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, दैट इज अ नोट। इज दैट क्लियर? ये क्लियर है दोस्तों? वेदांश, इज दैट क्लियर? हर एक लाइन ओके। फिलामेंटस algae like Spirogyra, Eulothrix, these are the filamentous algae, Spirogyra, okay। डन। स्टारफिश इकानोडर्मा क्लास से बिलोंग करता है, एक्चुअली फिश नहीं है, दिस इज नॉट ट्रू फिश, ओके। दोस्तों फ्रैगमेंटेशन बात करते हैं, दूसरा जो है फिशन। फिशन में फंगा में बाइनरी फिशन होता है। फिशन इज आल्सो प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, इट इज आल्सो प्रेजेंट इन दोस्तों अमीबा, इट इज आल्सो प्रेजेंट इन फंगा आल्सो फिशन। बात कर रहे हैं हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, ओके। उसमें हो गया है फ्रैगमेंटेशन। कैसा है? एनसीईआरटी में सिर्फ इतना ही दिया है कि फंगाई अंडरगो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय मींस ऑफ फ्रैगमेंटेशन, फिशन और बडिंग, पर हमें पता होना चाहिए कि क्या होता है ये सब, हर एक शब्द का इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। और दोस्तों व्हाट इज मीन बाय फिशन? फिशन क्या होता है? फिशन क्या है? ये भी एक सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। यहाँ पे अ पेरेंट सेल स्प्लिट मींस डिवाइड, ब्रेक इनटू टू इक्वल डॉटर सेल। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे a type of sexual reproduction, a type of asexual reproduction, a type of asexual reproduction in which दोस्तों that is in which parent cell divide या फिर split या फिर कोई शब्द यूज करेगा, parent cell divide, split और break down, सबका मतलब एक ही है। एमसीक्यू में ये तीनों शब्द आ सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन व्हिच पेरेंट सेल डिवाइड, स्प्लिट और ब्रेक डाउन इनटू टू इक्वल डॉटर सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वल शब्द बहुत इंपॉर्टेंट। टू इक्वल डॉटर सेल, इसे कहते हैं दोस्तों फिशन। सपोज एक पेरेंट सेल है, ओके, और ये जो पेरेंट सेल है दोस्तों यहाँ पे, ओके, यहाँ पे फिशन होगा और that parent cell undergo binary fission, suppose ये binary fission है and it is divided it undergo mitosis and to form दोस्तों two daughter cell, this one और this one, and these two daughter cell later on grow as a new fungi। इससे क्या बनेगा दोस्तों? इससे नया fungi बनेगा, they will form new fungi और this will also form a new fungi। so ये कॉन्सेप्ट है, ये है दोस्तों डॉटर सेल। ये डॉटर क्यों कहा है, इसे सन क्यों नहीं कहा है? जिसने टर्म कॉइन किया है उसको ही पता होगा। उसको डॉटर ही खुद के डॉटर के ऊपर ज्यादा प्यार होगा रादर देन सन। तो ये दोस्तों डॉटर सेल्स ये दो बने हैं, और ये क्या है बना है दोस्तों? फिर से बना है फंगाई, नए फंगाई बने, न्यू फंगाई। दिस इज एन टाइप ऑफ दोस्तों
दिस इज एन टाइप ऑफ फिशन। तो फिशन के बारे में अब आपको पता है व्हाट इज मीन बाय फिशन। टॉपिक जरा एक्सटेंड करके ले लूं। व्हाट इज मीन बाय लॉन्जिट्यूडनल फिशन, व्हाट इज मीन बाय ट्रांसफर फिशन, व्हाट इज मीन बाय सिंपल और इरेगुलर फिशन, और ये किस में होता है एक बार बताऊं, एक्सप्लेन करूं, या फिर आपको पता है ये 10th में था आपको सिलेबस में। ओके, लाइफ प्रोसेसेस नाम की एक टॉपिक है स्टेट बोर्ड को, लाइफ प्रोसेसेस 2। ओके, लाइफ प्रोसेस इन ऑर्गेनिज्म पार्ट 2, और सीबीएसई वालों को रिप्रोडक्शन इसमें है। ये डिटेल में ले लूं, डिटेल में ले लूं या नहीं, या ठीक है यहां तक? ठीक है ना? बहुत सारे लोगों को कॉन्सेप्ट होता है। ओके, बहुत सारे लोगों को पता भी है। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, फिशन की बात करेंगे दोस्तों। नाउ बर्डिंग क्या होता है ये है, ठीक है, मैं बाद में बात करता हूं। नाउ व्हाट इज मीन बाय बर्डिंग। बर्डिंग क्या है दोस्तों? बर्डिंग में, बर्डिंग से क्या सीखना है? बर्डिंग क्या होता है? बर्डिंग में दोस्तों इट इज कॉमन इन ईस्ट, जो है ये ईस्ट नाम की जो फंगा है उसमें दिखता है। यहाँ पे क्या दोस्तों, a small outgrowth arises from the parent cell, and now that known as a bud, and that bud get matured and released from that parent cell and grow as a new individual fungi। मैं आपको समझाता हूँ बर्डिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। बर्डिंग में क्या होता है दोस्तों? बर्डिंग में, ओके चलो थोड़ा सा ऐसे लिखता हूं, दैट नोट लिखता हूं यहाँ पे, नोट लिखता हूं आगे वाला, दैट इज, और बर्डिंग दूसरे स्लाइड में लिखता हूं दोस्तों, दैट बाइनरी फिशन जो है, बाइनरी फिशन है दोस्तों, उसके अलग अलग टाइप होते हैं। also present in binary, ये भी बाइनरी फिशन है, also present in other organism, also present in other organism, it is also present in other organism। और उसके फिर टाइप है दोस्तों बाइनरी फिशन के, एक होता है दैट इज अ ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। ये किस में होता है, कोई मुझे बता सकता है? मैंने पढ़ाया है ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन किस में है। व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन? याद रखेंगे, पैरामीशियम, पीटी, पैरामीशियम तो प्रोटिस्टा है, पैरामीशियम, बहुत बढ़िया। और फेमस एग्जांपल, और फेमस एग्जांपल क्या है पैरामीशियम के दोस्तों? अनदर एग्जांपल, बहुत बढ़िया, वाह। पैरामीशियम के बाद, पैरामीशियम छोड़ के वेदांश, क्या बात है, बैक्टीरिया, क्या है? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया दोस्तों। फिर है लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिशन, L फॉर लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन। और दोस्तों इसका एग्जांपल दैट इज यूग्लेना, इसका एग्जांपल क्या है? यूग्लेना, एमसीक्यू आएगा, ये सब एमसीक्यू। और दूसरा होता है दोस्तों सिंपल, सिंपल या फिर उसे कुछ लोग इरेगुलर बाइनरी फिशन बोलते हैं, सिंपल और इरेगुलर बीएफ यानी बाइनरी फिशन, सिंपल और इरेगुलर बाइनरी फिशन। इसका एग्जांपल है दोस्तों दैट इज, कोई मुझे बता सकता है? अमीबा, इसका क्या एग्जांपल है? अमीबा। तो बाइनरी फिशन का मतलब क्या है? बाइनरी फिशन में दो डॉटर सेल बनते हैं। बाइनरी फिशन में दोस्तों, बाइनरी फिशन में दो डॉटर सेल बनते हैं, ये एमसीक्यू आ सकता है, दो डॉटर सेल्स बनते हैं इन बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन में दो डॉटर सेल बनते हैं, दो, ये दो है। ओके, टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म, टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म इन बाइनरी फिशन। नाउ कोई मुझे बता सकता है, दिस इज नोट नंबर 1, और ये दोस्तों नोट नंबर 2, दैट इज मल्टीपल फिशन इज प्रेजेंट इन। मल्टीपल फिशन में एक से ज्यादा, दो से ज्यादा दोस्तों, मोर देन टू डॉटर सेल बनते हैं। और मल्टीपल फिशन इज प्रेजेंट इन एमसीक्यू, कोई मुझे बता सकता है इसके दो एग्जांपल? इज प्रेजेंट इन, दो एग्जांपल मल्टीपल फिशन में। ओके, दो से ज्यादा सेल बनते हैं। मल्टीपल फिशन में क्या है दोस्तों? दो से ज्यादा सेल बनते हैं, मल्टीपल सेल बनते हैं, दो से ज्यादा सेल्स बनते हैं, यानी मल्टीपल सेल्स बनते हैं, इसलिए कहा जाता है मल्टीपल फिशन। और इसके दो एग्जांपल आपके सिलेबस में है, ईस्ट नहीं, मोस्ट फंगाई नहीं,
क्या बात है यार सानिका, बहुत बढ़िया। प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम और वीडी आप भी करेंगे दोस्तों। दो एग्जांपल है, वन इज अमीबा, अनदर इज द प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम और मलेरियल पैरासाइट। दो दो एग्जांपल है दोस्तों, दो एग्जांपल। एक है दैट इज अमीबा, अमीबा में दोनों टाइप का फ्यूजन होता है, एमसीक्यू। अमीबा में दोनों टाइप का फ्यूजन है, ये एमसीक्यू दोस्तों। और दूसरा है दैट इज अ प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम, एक मलेरियल पैरासाइट है। आपको पता है प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम या फिर ब्रैकेट में लिखो आप मलेरियल पैरासाइट। क्या है? दैट इज मलेरियल पैरासाइट। लिखो क्या यहाँ पे? मलेरिया, मलेरिया, मलेरियल पैरासाइट। कौन? प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम, एमसीक्यू। इट कॉजेस मलेरिया। ये सब हो गया फिशन के बारे में, सब सब। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिशन, ये सब सिलेबस में है। ओके, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म नाम का टॉपिक है 12th में। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ओके सॉरी, हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, उसमें मलेरिया डिटेल में है। वहां पे भी आएगा कि मलेरियल पैरासाइट में मल्टीपल फिशन होता है। याद रखो, एम फॉर मल्टीपल फिशन और एम फॉर मलेरियल पैरासाइट। मलेरियल पैरासाइट में कुछ कौन सा फिशन है? मल्टीपल फिशन। नाउ यहाँ पे एक लाइन कही तो भी लिखो आप लोग, अमीबा, अमीबा में दोस्तों, अमीबा, अमीबा हैव बोथ, दैट इज अ मल्टीपल एंड बाइनरी फिशन। कैसे याद रखते? सिंपल सी बात है, मैं आपको बताता हूँ। ये जो है ना अमीबा, सिंपल है, ऐसे याद रखो, दैट इज अमीबा, अमीबा, अमीबा। तो अमीबा की स्पेलिंग में ये यम है, तो मल्टीपल फिशन होगा। और इसके स्पेलिंग में दोस्तों बी भी है, तो बी भी है तो बाइनरी फिशन भी होगा। अमीबा में दोनों टाइप की फिशन है, यम फॉर मल्टीपल फिशन और यम फॉर दोस्तों बाइनरी फिशन। याद रखो, ये एमसीक्यू सिलेबस में। अमीबा हैव बोथ टाइप ऑफ फिशन, मल्टीपल फिशन एज वेल एज बाइनरी फिशन। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। दिस इज अबाउट द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन फंगाई, दिस इज अबाउट द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन फंगाई। सब लेसन बैच में है बेटा, सब लेसन जो है वो ऐप में है, और ये टॉपिक मैं फिर से पढ़ाने वाला हूँ, ले लो। आप सिर्फ यहां से आज अटेंड करो, ओके? मैं ये टॉपिक फिर से पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों, ठीक है? आप जस्ट अटेंड करो इसको, ओके? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, मल्टीपल फिशन अनफेवरेबल कंडीशन होता है, स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके? ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? हाँ, ये है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ओके? टॉपिक चैप्टर नंबर 2, ओके? 11 साइंस का चैप्टर नंबर 2 समझ में आ रहा है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं ना, बात करते हैं बर्डिंग के बारे में। बर्डिंग बाकी है अभी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। फिशन हो गया, फिशन दूसरी जगह पे होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और किसमें कौन सा फिशन है? मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 टाइप का एमसी आएगा, ओके? इरेगुलर फिशन अमीबा में है, क्यों? क्योंकि उसका शेप ही इरेगुलर है, उसका शेप ही इरेगुलर है। बात करते हैं, स्लाइड नंबर 4 है, और बात करेंगे दोस्तों बर्डिंग की। बर्डिंग में क्या होता है, मैं पहले लिख के देता हूं और फिर एक्सप्लेन करता हूं। बर्डिंग में क्या? A small outgrowth arises from a parent cell. Budding is present in, it is present in दोस्तों, present in cellular fungi, और वो यूनिसेलुलर फंगाई दोस्तों, that is yeast, एमसीक्यू। ईस्ट में होता है बर्डिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नाउ व्हाट इज बर्डिंग? A small outgrowth arises from a parent cell. A small outgrowth, a small outgrowth arises from parent cell. Outgrowth arises from parent cell, from parent cell known as bud. उसे बोला जाएगा bud. That parent cell is known as दोस्तों bud. Now eventually means later on, जब टाइम जाएगा तब, eventually means कुछ समय बाद, eventually दोस्तों
that bud increase in size and become mature. Increase in size, size में बड़ी होगी, and become mature, और mature हो जाएगी, become mature. Or after maturity, that bud fall from that or detach from the parent cell and grow as a new individual fungi. After maturity, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है. After maturity, or that matured bud detaches from, अलग हो जाती है, detaches from दोस्तों, that is from parent cell, detaches from parent cell and grow as new individual fungi, grow as new individual fungi, new individual fungi. मैं आपको समझा देता हूँ ये क्या है. नाउ इसका मतलब है दोस्तों, इट इज प्रेजेंट इन ईस्ट. सपोज ये ईस्ट ऐसा दिखता है, मान लो ये है ईस्ट, और ये है दोस्तों पेरेंट सेल. ये क्या है, मान लो दिस इज एन पेरेंट सेल. ये है ईस्ट रे, ओके. नाउ ये है पेरेंट सेल, मान लो, ओके. ये है मम्मी, दिस इज एन पेरेंट सेल. और इस पेरेंट सेल में दोस्तों अनइक्वल डिवीजन होता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कौन सा डिवीजन है, पेरेंट सेल अंडर को दोस्तों अनइक्वल सेल डिवीजन, अनइक्वल माइटोसिस होता है. डायरेक्ट अनइक्वल माइटोसिस मींस न्यूक्लियाई तो इक्वल होते हैं पर साइटोप्लाज्म का अनइक्वल माइटोसिस होता है. और a small outgrowth दोस्तों arises, a small outgrowth arises from this parent cell. A small outgrowth arises from this parent cell. ये छोटा सा आउटग्रोथ दोस्तों, इसे कहा जाता है बर्ड, इसे कहा जाता है बर्ड. A small outgrowth arises from parent cell, इसे कहा जाता है बर्ड. नाउ ये जो बर्ड है दोस्तों, that bird increase in size and become mature. ये जो बर्ड बना है, that bird increase in size and become mature. ओके. सपोज फिर से है दोस्तों, ये अनइक्वल डिवीजन हुआ है, अनइक्वल डिवीजन, अनइक्वल माइटोसिस. सिर्फ साइटोप्लाज्म का अनइक्वल डिवीजन हुआ है, न्यूक्लियर डिवीजन इक्वल है. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. क्रोमोसोम इक्वल डिवाइड हुए हैं, सिर्फ साइटोप्लाज्म यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है दोस्तों. नाउ फिर क्या होता है, और आप बोलेंगे डिवीजन है तो सर फिर भी अटैच है. हाँ अटैच है, बाद में अलग हो जाएंगे, बाद में दूसरा सेल बाद में बनेगा. मान लो ये है मदर, दैट इज अ पेरेंट सेल. ये है मदर, दैट इज अ पेरेंट सेल. ओके, ये है मदर पेरेंट सेल. अभी दिस बर्ड टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम दैट पेरेंट सेल एंड दोस्तों इंक्रीज इन साइज. दैट बर्ड टेक a nutrition from parent cell and increases in size and become mature. नाउ ये है दोस्तों मैच्योर बर्ड, ये है मैच्योर बर्ड. नाउ ये बर्ड जब मैच्योर, तो दोस्तों इट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट सेल, इट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट सेल, ओके. इट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट सेल एंड ग्रो एज अ न्यू इंडिविजुअल फंगा. ये पेरेंट सेल अलग रह जाएगी, ऐसा मान लो ये है पेरेंट सेल, ये अलग रह जाएगी और यहाँ पे डिटैच हो जाएगा, और दैट बर्ड ग्रो एज दोस्तों न्यू इंडिविजुअल फंगा, that grow as a new individual fungi. तो दोस्तों just wait. मान लो ये है पेरेंट सेल, ये है पेरेंट सेल और ये है अपना बर्ड. ये है पेरेंट सेल वैसे का वैसा, और ये बन गया न्यू फंगा. मान लो ये नया फंगा है. तो ईस्ट ऐसा ही दिखता है क्योंकि वो यूनिसेलुलर है. ऑल ऑफ द फंगा आर फिलामेंटस एक्सेप्ट ईस्ट. ऑल ऑफ द फंगा आर फिलामेंटस एक्सेप्ट ईस्ट. ये फिलामेंटस नहीं होता दोस्तों. सो दिस इज अनबर्डिंग, दिस इज अनबर्डिंग एंड बर्डिंग इज आल्सो प्रेजेंट इन हाइड्रा. एमसीक्यू, एनिमल में बर्डिंग कहां पे दोस्तों, बर्डिंग इज आल्सो प्रेजेंट इन हाइड्रा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक नोट इंपॉर्टेंट है. यहां पे लिखता हूं
नोट जरा आज ऊपर लिखता हूं, आप नीचे लिखो चलेगा। नोट क्या है दोस्तों? दैट इज बर्डिंग इज also present in animal like hydra. Budding is also present in हाइड्रा। एनिमल है, ये मत भूलो, बहुत सारे लोगों को तो ये भी पता नहीं कि हाइड्रा क्या है। हाइड्रा एनिमल है, टॉपिक है किंगडम एनिमलिया। सो दिस इज अबाउट द बर्डिंग। नाउ इसका एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, ये क्लियर है? व्हाट इज बर्डिंग? इट इज प्रेजेंट इन यूनिसेलुलर फंगा दैट इज ईस्ट। एमसीक्यू है, दिस इज एन एमसीक्यू। ईस्ट में है, a small outgrowth arises from the parent cell, okay, known as a bud. Eventually later on that bud increases in size and become mature, that is mature bud. And mature bud detaches from the parents and grow as a new individual fungi. हमारे इसमें क्या है? आपल्याकडे लक्षात ठेवा, लक्षात मुलगा समजा आपल्याकडची कंडिशन काय 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 ठिकाणाची, सगळ्यांच्याच घरी नाही, पण मुलगा 20 वर्ष झाला, 25 वर्ष झाला, 26-27 वर्ष झाला, घरच्यांनी लग्न केलं, तरी तो मॅच्युअर झालाय, सगळा लग्न झालंय, तरी पण तो बापावर डिपेंडंट आहे, काम नाही हाताला, कारण की त्यांनी त्या स्किल डेव्हलप केल्या नाहीत ह्या एज मध्ये। लक्षात। आणि इथं ह्या बर्ड करून काय शिकायचंय? लक्षात ठेवा, मॅच्युअर झाल्याच्या नंतर डिटॅच नाही व्हायचं पॅरेंट पासून, पण फायनान्शियली आपण मात्र इंडिपेंडेंट बनायचं। फायनान्शियली इंडिपेंडेंट व्हायचं नसतं। आजकालचे ठोंबे लग्न झालेले आहे लक्षात, आणि पप्पाला म्हणतात पप्पा पप्पा बाहेर चले, पप्पा 10 रुपये द्या, कशाला? बायकोला फॉरेन लेवलची पुडी आणायची। अरे तू फायनान्शियली इंडिपेंडेंट बनायचं। डॉक्टर बनलात ना, मुलींसाठी सांगतो खास करून, तर कोणावर डिपेंड नाही राहायचं, कोणीच तुमचा अपमान करू शकत नाही, कोणीच नाही। लक्षात, ह्या साध्या साध्या गोष्टीमुळे, बाकीच्या गोष्टीमुळे करतील लोक, कारण की महात्मा गांधीचा पण अपमान झालेला आहे, गांधीजींचा पण, बाबासाहेबांचा पण अपमान केलेला आहे, शिवाजी महाराजांचा पण अपमान झालेला आहे आग्र्याला दरबारामध्ये, पण त्या अपमानाचा जो राग आला ना त्यांना, त्या रागातनं त्यांनी ना बाबासाहेबांना ना कितीतरी लाखो लोकांना एक नवीन मार्ग दाखवला। महाराजांनी स्वराज्य निर्माण केलेलं आहे आणि महात्मा गांधींनी ना स्वतंत्र मिळवून दिलेलं आहे। असा जर राग आला ना, काय असं मोठं खाम हाती घ्या, चिडू नका पॅरेंट्सवर, येतं लक्षात। हे अतिशय महत्वाचं आहे, या साध्या साध्या गोष्टी आहेत लक्षात। आणि ह्या बर्ड करणं काय शिकायचं? व्हेन वी गेट मॅच्युअर्ड बिकम इंडिपेंडेंट, व्हेन वी गेट मॅच्युअर्ड बिकम इंडिपेंडेंट, ये बर्ड जैसा। ओके, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। दिस इज अबाउट द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये क्लियर है दोस्तों? दिस इज अबाउट द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यस और नो? इज दैट क्लियर? ओके, इज दैट क्लियर? ओके, डन। यहां पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है, इट इज अ यूनिपेरेंटल। आपने 10th में पढ़ा होगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा यूनिपेरेंटल होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन बी यूनिपेरेंटल और और बायपेरेंटल, मल्टी नहीं बायपेरेंटल, पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑलवेज एंड ऑलवेज दोस्तों दैट इज यूनिपेरेंटल, ऑलवेज एंड ऑलवेज यूनिपेरेंटल। नाउ ये हो गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फंगस। एनसीईआरटी में सिर्फ एक लाइन है, एक लाइन मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है दोस्तों। नंबर स्लाइड नंबर 5, दैट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। asexual reproduction, this type of reproduction occur with the help of दोस्तों asexual spore। it occur with the help of asexual spore, it occurs with the help of दोस्तों that is asexual spore, asexual spores। now asexual spore are produced by mitosis। okay, asexual spore are formed in they are formed in a special structure, कहीं पे सब जगह पे नहीं, in a special structure known as दोस्तों fruiting bodies। सब नहीं, पर some asexual spore is produced in a special structure known as fruiting bodies or sporangia। spore means सेक्सुअल और असेक्सुअल स्पोर, एंजिया मींस बैग। फ्रूटिंग बॉडीज का दूसरा नाम है दोस्तों स्पोरेंजिया, याद रखो क्या नाम है? स्पोरेंजिया, फ्रूटिंग बॉडीज। और नाउ दैट asexual spore are produced by mitosis, that's why also called the mitospore। asexual spores are produced by mitosis, they are produced by which type of cell division? By
mitosis, that is a keyword, MCQ. They are produced by दोस्तों mitosis, that's why so named as mitospore. So named as mitospore. उनका दूसरा नाम है माइटोस्पोर, उनका दूसरा नाम है दोस्तों माइटोस्पोर. फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं. मान लो ये है स्पोरेंजिया, ये है स्पोरेंजिया. मान लो दोस्तों एक ऐसी बैग जिसमें स्पोर है, जिसमें स्पोर है. मान लो ये है जूस्पोर, ये है जूस्पोर. और कौन से स्पोर है दोस्तों? ये है जूस्पोर. अलग अलग टाइप के स्पोर होंगे. मान लो ये है जूस्पोर, जूस्पोर क्या नाम है उनका? जूस्पोर. और इस स्पोरेंजिया का नाम होता है दोस्तों जूस्पोरेंजिया, जिसमें जूस्पोर है ऐसे बैग. एंजिया मीन्स बैग, स्पोर मीन्स स्पोर, और एंजिया मीन्स बैग. अब स्पोर कंटेनिंग बैग. और ये जब बाहर आ जाएंगे जूस्पोर तो थोड़े से मैच्योर होते हैं. इनमें ना फ्लैजेला होता है दोस्तों, तो इसलिए वो मोटाइल है. जू मीन्स एनिमल, जू मीन्स एनिमल, तो ये ऐसे मोटाइल होते हैं. ये दोस्तों जूस्पोर याद है. और फिर इससे ओके दे अंडरगो दोस्तों जर्मिनेशन. फेवरेबल कंडीशन में इनका जर्मिनेशन होता है. अच्छा, जर्मिनेशन मीन्स जैसे सीड जर्मिनेशन होतं ना, मातीमध्ये सीड टाकल्यानंतर जसं उगम पावतं, ठीक आहे, सीड पासून सीडलेट बनतं, सीडलेट पासून प्लांटलेट, so they will undergo and then there is a formation of from each spore, then there is a formation of दोस्तों that is a new fungi, then there is a formation of new fungi. तो इसे कहते हैं that is a asexual reproduction, new fungi. तो ये याद रखो, ये ऐसा होता है दोस्तों. Now what are the example of asexual spore? Asexual spore के example है दोस्तों that is झकास. क्या एग्जाम्पल है? झकास. झकास मीन्स पहले ही लिख के दिया है मैंने. झकास मीन्स दोस्तों जूस्पोर. ये मोटाइल होते हैं. एमसीक्यू, ये कैसे दोस्तों? मोटाइल है. जू मीन्स एनिमल. दूसरे होते हैं अप्लानोस्पोर. प्लानो मीन्स मोटाइल, सॉरी प्लानो मीन्स मूवेबल, अप्लानो मीन्स नॉन मूवेबल. ये नॉन मोटाइल है. इनके बारे में क्वेश्चन आएगा, इनमें से कौन मोटाइल और नॉन मोटाइल है? तो जूस्पोर मोटाइल है, अप्लानोस्पोर नॉन मोटाइल. कोनिडिया, कोनिडिया जो है दोस्तों स्पोर है. ये फॉर एसेक्सुअल स्पोर, ये फॉर एसेक्सुअल स्पोर, और दैट इज यस फॉर स्पोरेंजियोस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर. इसको हम डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं जब जब आएंगे. जूस्पोर, अप्लानोस्पोर, कोनिडिया, एसेक्सुअल स्पोर एंड स्पोरेंजियोस्पोर. तो ये चार जो है झकास में, चार जूस्पोर, अप्लानोस्पोर, कोनिडिया एंड स्पोरेंजियोस्पोर आर एग्जांपल ऑफ असेक्सुअल स्पोर. ये आगे भी चल के आने वाले हैं. तो ये मोटाइल क्यों है, ये नॉन मोटाइल क्यों है, स्पोरेंजियोस्पोर कैसे होते हैं, कोनिडिया दिखते कैसे, ये डिटेल में जानेंगे. मैंने इसका एक का एग्जांपल दिखाया दैट इज जूस्पोर. इज दैट क्लियर? ये दोस्तों असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके ओके, आगे बढ़ते, रुक जाओ. नाउ वेदांश, स्टोरी बाद में बात करेंगे. रुक तो जाओ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. तो बात करेंगे दोस्तों, ये होगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नाउ जरा प्लीज पे अटेंशन. थोडंसं घेऊया व्यवस्थित. दादा थोडंसं कंप्लीट करूया. लक्ष द्या जरा, लक्ष द्या. काही ना लिंक असते. ते तिन्ही रिप्रोडक्शन एकदाच जर का आले ना तर मला खूप इझी जातं ते सांगायला तुम्हाला. तिन्ही रिप्रोडक्शन कळणं गरजेचं आहे. तिन्ही रिप्रोडक्शन कळणं गरजेचं आहे. नाउ प्लीज पे अटेंशन. Number 6, that is sexual reproduction. Sexual reproduction. Sexual reproduction. It occur by दोस्तों, it occur by formation and fusion of gametes. ये जो होता है sexual reproduction, it occurs, पहले भी लिखा है, it occurs by formation and fusion of gametes. फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट. फ्यूजन ऑफ गैमेट्स मतलब क्या है दोस्तों? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स मींस फर्टिलाइजेशन. यस और नो? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स मींस फर्टिलाइजेशन, है ना? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स का मतलब है फर्टिलाइजेशन. सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक साइकिल होती है और उसमें 3 स्टेप होते हैं दोस्तों. दैट साइकिल्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट हैज 3 स्टेप्स. याद रखो.
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ दैट सेक्सुअल साइकिल इन फंगाई, sexual cycle of fungi have three steps, और वो तीन स्टेप कौन से दोस्तों? वन इज प्लाज्मोगैमी, प्लाज्मोगैमी दोस्तों, यहाँ पे फ्यूजन और प्रोटोप्लाज्म होता है। पहले तो मैं आपको समझाता हूं। एक है प्लाज्मोगैमी दोस्तों, दूसरा होता है दैट इज अ कैरियोगैमी, कैरियोगैमी, और फिर होता है दोस्तों दैट इज अ मियोसिस, मियोसिस। कुछ इंपॉर्टेंट बात है। सपोज फंगाई है, दो फंगाई हेप्लॉइड होते हैं, ये याद रखो कभी भी। उनकी जो प्लांट बॉडी है फंगाई की, दे आर हेप्लॉइड, मींस दे हैव ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम इन ईच सेल, उसे कहते हैं हेप्लॉइड सेल। आपको पता है ना व्हाट इज मीन बाय हेप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल? हम डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है बिकॉज देयर आर टू सेट ऑफ क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन ईच सेल। दो सेट है क्रोमोसोम के। कितने क्रोमोसोम है हमारे बॉडी के अंदर? 46 एक सेल में, और 23 के दो सेट होते हैं। 23 पेयर्स है, लक्षात ठेवा 23 पेयर्स आहेत. तसं जर का दोन सेट असतील क्रोमोसोमचे तर दैट सेल इज नेम्ड एज ए डिप्लॉइड. अगर एक ही सेट होगा तो उसे कहते हैं हेप्लॉइड. फंगाई की जो बॉडी होती है वो हेप्लॉइड होती है. इसलिए दोस्तों ये क्या होता है प्लाज्मोगैमी में, मान लो कि दिस इज वन हेप्लॉइड सेल, दिस इज एन वन हेप्लॉइड सेल दोस्तों, ये एक हेप्लॉइड सेल है, और दिस इज एन अनदर हेप्लॉइड सेल, ये एक हेप्लॉइड सेल है और दूसरी ये एक हेप्लॉइड सेल. तो इनमें होता है दोस्तों फ्यूजन. इनमें क्या होता है? फ्यूजन. और क्या बनता है इनमें फ्यूजन होके? ये थोड़े बड़े हो गए. सपोज दिस इज वन हेप्लॉइड सेल और दिस इज अनदर हेप्लॉइड सेल. ये उनके न्यूक्लियर है, ये उनके न्यूक्लियर है, याद रखो ये उनके न्यूक्लियर है दोस्तों. फिर बनता है दैट इज ये है हेप्लॉइड और ये है हेप्लॉइड. तो सिर्फ यहाँ का प्रोटोप्लाज्म ही फ्यूज होता है. प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म ही फ्यूज होता है, प्रोटो न्यूक्लियर फ्यूज नहीं होते हैं. और कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती है दोस्तों, कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि एक ही सेल में दो न्यूक्लियर रहते हैं, एक ही सेल में दो न्यूक्लियर. इस स्टेज को कहा जाता है दोस्तों डाइकैरियन. फिर इमीडिएटली इसके बाद इमीडिएटली ये जो स्टेज, ये इसे रिप्रेजेंट किया जाता है n+, और इमीडिएटली मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा. फिर बाद में क्या होता है दोस्तों फ्यूजन ऑफ, ये जो है फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियर भी होता है. और फिर ये होगा फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियर. दिस इज वन न्यूक्लियस और ये दूसरा न्यूक्लियस, इनका फ्यूजन होकर दोस्तों फ्यूजन ऑफ दैट इज कॉल्ड एज अ कैरियोगैमी. प्लाज्मोगैमी मींस फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म. सिर्फ साइटोप्लाज्म ही फ्यूज हुए अभी तक, इसे कहते हैं प्लाज्मोगैमी. कैरियन मींस न्यूक्लियस. यहाँ पे हुआ है दोस्तों फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियर. फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियर मींस दो न्यूक्लियस. और इससे क्या बनता है? इससे बनता है दोस्तों एक जाइगोट. इससे क्या बनता है? इससे बनता है जाइगोट. याद रखो दोस्तों ये स्ट्रक्चर बना है, ये होता है जाइगोट. और ये जाइगोट जो है, ये जो कंडीशन है ये है n+n. ये जो फिर दोस्तों सब में होगी या नहीं इसको मैं बाद में लिखता हूँ. ये बन गया 2l. और व्हाट इज दिस? ये स्ट्रक्चर क्या है दोस्तों? इसे कहते हैं ये है जाइगोट. क्या स्ट्रक्चर है? जाइगोट. और इस जाइगोट में रिडक्शनल डिवीजन होता है दोस्तों. इस जाइगोट इट अंडरगो मियोसिस. इसमें ना रिडक्शनल डिवीजन होता है, इट विल अंडरगो मियोसिस. और पहले दो हेप्लॉइड सेल बनते हैं, पहले दो हेप्लॉइड सेल. दीज आर द हेप्लॉइड सेल n और n. और फिर इनसे भी दो हेप्लॉइड सेल बनते हैं दोस्तों, और टोटल 4 हेप्लॉइड सेल बनते हैं. इसे कहते हैं स्पोर. ऐसे 4 स्पोर बनते हैं दोस्तों. ये स्पोर बन गए 4, और ये चारों के चारों हेप्लॉइड है. और फिर दे विल अंडरगो अगेन, दिस स्पोर विल अगेन फॉर्म फंगाई. नाउ प्लीज पे अटेंशन. सो ये जो प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी और मियोसिस, मियोसिस किसमें होता है दोस्तों? मियोसिस मींस दैट इज रिडक्शन डिवीजन. ये सब बताऊंगा. रिडक्शन डिवीजन, मियोसिस, माइटोसिस, रिडक्शन डिवीजन इन जाइगोट. रिडक्शन डिवीजन इन जाइगोट टू फॉर्म क्या बनते हैं? टू फॉर्म दोस्तों, टू फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर. टू फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर. ये कुछ ऐसा है.
तो डिटेल में तो मैं लिखूंगा, पर ये ऐसे स्टेज है दोस्तों, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, मियोसिस। तो ये स्टेज है फंगाई में, दैट इज अ 3 इंपॉर्टेंट स्टेज इन द सेक्सुअल साइकिल ऑफ फंगाई, प्लाज्मोगैमी, कैरियो, मियोसिस। ये क्वेश्चन आता है। ये सभी फंगाई में ऐसा नहीं है, सभी फंगाई ऐसा नहीं है, ये सिर्फ ये किसमें दोस्तों, इसका एग्जांपल मैं देता हूं। ये जो अभी है यहाँ पे, इट इज प्रेजेंट इन फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज ऐसा होता है। ओके, याद रखो। जो दूसरा लास्ट वाला ग्रुप है ड्यूटोमाइसिटीज में, उनमें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट ही है। ये ऐसा, ये जो स्टेज है प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, मियोसिस, उसका एग्जांपल है फाइकोमाइसिटीज। और अलगल फंगाई कहाँ जाता है उन्हें, लोअर फंगाई, फर्स्ट ग्रुप है। तो ये क्वेश्चन, व्हाट आर द सीक्वेंस ऑफ दिस, समझे, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियर और देन जाइगोट बनता है, तो उसमें मियोसिस होता है, और फिर उससे बनते हैं दोस्तों स्पोर। नाउ प्लीज पढ़ेंगे इसे कैसे याद रखेंगे। तो तुम्ही जर कधी तुळजापूरला गेला असताल, तुळजापूरमध्ये देवीच्या दर्शनाला जाताना आजूबाजूला ना दुकान आहेत बघा, ते वेगवेगळ्या सगळ्या मिळतात तिथं, देवीचे फोटो वगैरे, प्रसाद वगैरे असे दुकान असतात ना, आणि तिथं साऊंडवर वेगवेगळ्या कॅसेट पण मिळायच्या, जुन्या सीडीज वगैरे, आणि तिथं ना काही गाणे लावलेले असतात बघा, देवीचे गाणे असतात. कधी तुम्ही कधीतरी कुठं गोंधळात वगैरे ऐकले असतील. एक गाणं फेमस झालं होतं, अंबिका माता नांदते डोंगरावरी ग, ना 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 ना, अंबिका माता डोंगरावरी ग, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमियोसिस, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, मियोसिस, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, मियोसिस, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, मियोसिस। इसे ऐसे अंबिका माता नंदते डोंगरावरी ग, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, मियोसिस किसमें है, फाइकोमाइसिटीज में है दोस्तों। दिस इज इन फाइकोमाइसिटीज, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट वेदांश, दिस इज प्रेजेंट इन फाइकोमाइसिटीज। मुझे अभी इसे डिटेल में लिखना है। ओके, टाइम हुआ है यार, टाइम, फिर भी रुक जाओ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कभी कभी क्या होता है, कुछ फंगाई में दोस्तों, ओके, ये हो गया प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, मियोसिस। प्लाज्मोगैमी मींस फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ये डायरेक्टली ये स्टेज नहीं होती है यहाँ पे, सपोज मान लो ये स्टेज नहीं है, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, मियोसिस। बट कुछ फंगाई में ये स्टेज आती है जो मैं अभी निकाल रहा हूं, इसे कहा जाता है दोस्तों डाइकैरियन फेज। ये है डाइकैरियन फेज। यहाँ पे ये न्यूक्लियर कैरियोगैमी इज डिलेड इन दिस स्टेज। क्या हो दोस्तों, कैरियोगैमी, ओके, ये तो हो गया ऊपर का, कैरियोगैमी ये तो हो गया अभी दोस्तों। तो इन कुछ फंगाई लाइक एस्कोमाइसिटीज, इन एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज, याद रखो इन दोस्तों, इन एस्कोमाइसिटीज में क्या होता है, इन एस्कोमाइसिटीज एंड दूसरा जो ग्रुप है दैट इज अ बेसिडियोमाइसिटीज। रुक जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज दोस्तों क्या होता है, कैरियोगैमी इज डिलेड। क्या होगा, कैरियोगैमी डिले होता है, कैरियोगैमी इज डिलेड, कैरियोगैमी इज डिलेड एंड एडिशनल स्टेज ऑफ एडिशनल स्टेज, ओके, is present, an additional stage is present known as दोस्तों, known as dikaryon। क्या नाम है उसका, dikaryon। दो न्यूक्लियाई है, व्हाट इज मीन बाय डाइकैरियन, ये स्टेज क्या है दोस्तों, ये स्टेज है डाइकैरियन। डाइकैरियन मतलब डाई मीन्स टू और कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। तो यहाँ पे दोस्तों 2 न्यूक्लियाई पर सेल, एक ही सेल में 2 न्यूक्लियाई, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं N+N। डाइकैरियन इज, क्योंकि कैरियोगैमी डिले हुआ है, एडिशनल स्टेज इज प्रेजेंट नोन एज अ डाइकैरियन। और दोस्तों दैट फेज इज नेम्ड एज, दैट फेज इज नोन एज डाइकैरियोफेज। उसका नाम क्या है, डाइकैरियोफेज। और फिर बाद में फाइकोमाइसिस में तो इमीडिएट कैरियोगैमी होगा, पर इनमें कैरियोगैमी डिलेड है, इनमें कैरियोगैमी डिलेड है। ये भी क्वेश्चन आएगा, इमीडिएट कैरियोगैमी ऑकर इन फाइकोमाइसिटीज और कैरियोगैमी इज डिलेड इन
एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। और दोस्तों एक स्टेज आती है जिसका नाम है डाइकैरियन स्टेज या फिर डाइकैरियन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डाइकैरियन। और उस स्टेज का नाम है डाइकैरियोफेज। तो इसे कैसे याद रखेंगे कि इट इज प्रेजेंट इन एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। इसे इसको इसको कैसे याद रखेंगे कि डाइकैरियन इज प्रेजेंट इन एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। और एक इंपॉर्टेंट है तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल है, इसे ऐसा याद रख सकते हैं। एक मूवी है दोस्तों, बहुत पुराना है आपके लिए, उस मूवी का नाम है इतिहास। इतिहास। और उस इतिहास में अजय देवगन और ट्विंकल खन्ना का लीड रोल है, और राज बब्बर भी है और अमरीश पुरी। राज बब्बर विलन है और वो एक गांव में आता है और एक गांव की स्टोरी है। तो वहां पे जो ट्विंकल खन्ना है दोस्तों, ट्विंकल खन्ना, वो पहले होता है ना कोई मेहमान आ रहे तो उसके सामने गाना गाते हैं, तो वैसे वो गाना गाती है राज बब्बर के सामने। कुछ त्योहार रहता है शायद उसका स्वागत के लिए, और उस गाने के बोल कुछ ऐसे, शायद आपने ये सुना नहीं होगा पर जरूर उस गाने के बोल कुछ ऐसे दोस्तों। ओके, गोरा मुखड़ा है, आहा, ओहो, गोरा मुखड़ा है उस पे लटकाली, अचको मचको क्या करे राम, मैं कल से अटरा होने वाली, अचको मचको क्या करे राम, गोरा मुखड़ा है, आहा, ओहो, गोरा मुखड़ा है उस पे लटकाली, एसिको बेसिडियो डाई कैरी ऑन, एसिको बेसिडियो डाई कैरी ऑन। ऐसे याद रखेंगे, गोरा मुखड़ा है उस पे लटकाली, अचको मचको क्या करे राम, एसको बेसिडियो डाई कैरी ऑन। ऐसे याद रखें। डीजे रिमिक्स, आपका जो रूम है वहां पे जाने का दोस्तों, और फिर अपना शुरू करने का, अरे क्या सॉन्ग सुनते हो, खुद बनाएंगे डीजे रिमिक्स, बंद करने का और शुरू करने का। Plasmogamy, karyogamy, meiosis. Plasmogamy, karyogamy, meiosis. Ascobasido, dikaryon. Ascobasido, dikaryon. Like it's English song. English song. No stop anabina. No stop anabina. Cyanobacteria fix nitrogen into heterosis. No stop anabina. Hey, no stop anabina. Cyanobacteria fix nitrogen into heterosis. नॉस्टॉप एनाबिना. लगेच मराठी. प्लाज्मोगॅमी कॅरियोगॅमी मियोसिस. प्लाज्मोगॅमी कॅरियोगॅमी मियोसिस. फिर हिंदी. एचको मचको क्या करे राम, एसको बेसिडियो डाई कैरियन. अरे एसको बेसिडियो डाई कैरियन. तो ये क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल साइकिल इन एस्कोमाइसिडी और बेसिडोमाइसिडी. अभी बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं कि डाई कहां पे, ये तो पता है प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, मियोसिस, पर डाई कैरियन आता है दोस्तों नंबर 2 पे. यहाँ पे क्यों, डाई का मतलब है 2, ये 2 पे आएगा. प्लाज्मोगैमी के बाद आता है डाई मींस 2, ऐसे याद रखेंगे. सो प्लाज्मोगैमी, डाई कैरियन, कैरियोगैमी एंड मियोसिस. प्लाज्मोगैमी, डाई कैरियन एंड कैरियोगैमी एंड मियोसिस, दीज आर द स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल साइकिल इन एस्कोमाइसिडीज एंड बेसिडोमाइसिडीज. ये 2 नंबर पे, कल इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. मुझे लगता है टाइम हुआ है. ओके, तो ये याद रखो दोस्तों. थैंक यू सो मच, बाय बाय. उद्या चला मी हे जरा डिटेल घेतो. ओके, उद्या चला मी हे डिटेल घेतो. ठीक आहे, चलो. चलो बाय. प्रोटोजुआ का सॉन्ग. ओके, प्रोटोजुआ का सॉन्ग क्या है, व्हाट इज प्रोटोजुआ, क्या है. ओके, पता नहीं आपको. क्या है प्रोटोजुआ का सॉन्ग. ओके,
पता है नहीं? हायला 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 हुआ हुआ, हायला हायला तूने छुआ, हायला हायला मैं तो मर गई रे, बेखुदी में क्या ये कर गई रे। क्राइजोडाइनो हुआ हुआ, मोल्ड प्रोटोजुआ जुआ, क्राइजोडाइनो हुआ means chrysophytes and dinoplasmids. Mold protozoa means slime mold and protozoa. क्राइजोडाइनो हुआ मोल्ड प्रोटोजुआ जुआ, युगल तूने दिल को छू लिया रे, सब आते हैं प्रोटिस्टा, हायला हायला हुआ हायला हायला तूने छुआ, हायला हायला मैं तो मर गई रे, फिर कोई घटा बरस गई रे। प्रीति जिंटा और ऋतिक रोशन, इन दोनों का ये गाना है, मूवी है कोई। चलो सर, कैन वी प्रिपेयर कॉन्सेप्ट मैप ऑफ एवरी चैप्टर? आपके जरूरत नहीं दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट बहुत मिलने वाले हैं, तो आपको बहुत टाइम लगेगा। ये सब रेडीमेड है, ये जो रिसोर्सेस है वो रेडीमेड है, मिल जाएंगे आप, फिंगर टिप्स में है। आई डिडंट अंडरस्टैंड द लास्ट पार्ट यहाँ का, तो थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। ये डिटेल में अभी तो बाकी है, ये तो मैंने सिर्फ टेबल निकाला है, अभी इसका बाकी है। ठीक है, ठीक है, ओके। टेस्ट में यहाँ तक आएगा। उधर चला टेस्ट है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, ठीक है, उधर चला टेस्ट है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उधर चला लेक्चर नाही, संडे आहे, सुट्टी आहे। ठीक है, ठीक है। तुम्ही आज आयुष भेटत, तुम्ही आज जरी गेलात तरी, उद्या जरी गेलात तरी भेटा। ये पहला ही लेसन चालू है बेटा, ऋतुजा हा पहिलाच है। सॉन्ग की वजह से सब ध्यान में रह रहा है, ओके। ये आर ऑल्सो प्रोटेक्टिव कवरिंग नोन एज सिस्ट। वो अमीबा में जब आएगा ना अमीबा, तब हम डिटेल में बात करेंगे। डायजेशन एब्जॉर्प्शन का टेस्ट प्लीज, त्याच्यावर पण टेस्ट घेऊया, त्याचं सगळं शेड्यूल आहे। ओके, उद्याच्याला दोन्ही लेक्चरला हॉलिडे, संडेला कंप्लीट हॉलिडे, तुमची फक्त एक टेस्ट राहील बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशनवर आहे। ठीक आहे, तुमच्या मित्रांना सांगा लेक्चर अटेंड करायला, सोमवारी परत भेटूया। ओके, यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों फंगा का क्लासिफिकेशन। मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जरा डिटेल में लेता हूँ, और फिर बात करेंगे फंगा के क्लासिफिकेशन के बारे में, और फिर फाइकोमाइसिटिस के बारे में बात करेंगे। उद्या वेबिनार आहे का, मी थोडंसं इन्फॉर्म करतो। सर जे आहेत आपले, त्यांना फीवर कफ कोल्ड आलेला आहे, त्यामुळं ते जे वेबिनार मोटिवेशनल सेमिनार घेतात, जर पॉसिबल असेल तर मी त्यांना आज सांगतो आणि मग सांगतो तुम्हाला। ठीक आहे, मी तुम्हाला सांगतो। ईस्ट इज ओनली युनिसेलुलर फंगा, यस यस यस। स्वराज, डीएनआरपी घेऊया ना आपण, माझी पण स्टोरी सांगेल कधी। झुलॉजीवर पण टेस्ट होईल, एक शेड्यूल येईल, एकदा टॉपिक होऊ द्या, थोडासा डायजेशन ऍब्झॉर्प्शन, ऍटलिस्ट अॅनाटॉमी तरी होऊ द्या, अॅनाटॉमी आणि थोडासा पार्ट होऊ द्या, मग मी तुम्हाला पूर्ण आठवड्याभराचा शेड्यूल देतो की असं डीपीपी राहते। ठीक आहे, तुम्ही तो शेड्यूल प्रिंट करून किंवा लिहून लावून द्यायचा। बर्डिंग इन ईस्ट ऑकर इन बोथ कंडीशन बेटा, फेवरेबल एज वेल एज अनफेवरेबल, क्योंकि उसमें वही एक टाइप है बर्डिंग। ठीक है, लेक्चर 6 के स्क्रीनशॉट, ठीक है, भेजे ना मैंने ग्रुप पे, भेजे बेटा। पीडीएफ के फॉर्म में देख लो, पीडीएफ के फॉर्म में। ठीक है, आज के लेक्चर में कुछ डाउट्स थे आपको? कस्क्यूट, क्या बात है, कस्क्यूटा इंसेक्टिवोरस प्लांट नहीं है, कस्क्यूटा एक पैरासाइटिक प्लांट है, उसमें ब्लैडर वर्ट इंसेक्टिवोरस था, कस्क्यूटा इंसेक्टिवोरस नहीं, वो पैरासाइटिक प्लांट है, डायरेक्ट दूसरे प्लांट से न्यूट्रिशन डिराइव करता है। कस्क्यूटा कंप्लीट पैरासाइटिक। टेस्ट तुमच्या लेक्चरच्या टाइमला असेल 1:15 वाजता। ठीक आहे, ते पण अपलोड करतो। ते जे लेक्चर आहे ते थोडंसं लाईट गेलती, त्यामुळे ते मिस झालेलं आहे, ते पण मी अपलोड करतो। अमरवेल, बहुत बढ़िया। बादल, बहुत बढ़िया। आज सकाळचे स्क्रीनशॉट टाका ना, टाकलेत ना, पाठवलेत आज सकाळचे पण स्क्रीनशॉट पाठवलेत, नीट बघत चला।
थोडस स्क्रोल चलत चला, खाली वरी असतील. ठीक आहे, चलो बाय, रुकते हैं, बाय. जेवण बाकी माझं आणखी. रहो, आगे बढ़ते रहो बच्चों. बरं ठीक आहे, चालतं, तसं करता येईल. बरं ठीक आहे ऋतू.